Hello, good evening, everybody. I hope everybody is fine. All right. So, कल मैंने सर्कल का टॉपिक सर्कमफ्रेंस कवर किया था. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसको और किस नाम से जानते हैं, सब हमने कवर किया था. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप गीता यादव चैनल करके है, उसमें आप जाके देख सकते हैं. ठीक है. उसमें गीता यादव मेरी वाइफ है. जस्ट फॉर, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर्कल. सेमी सर्कल उसके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का, पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का. सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम चीज है, लेकिन सेमी सर्कल में पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दो डिफरेंट थिंग्स आर देयर. ओके, so the next topic is semi. Now the word semi means half circle. We are going to discuss about the half circle. So let us draw what is this half circle looks like. You know, everybody, circle, everybody knows it is having boundary, it is having a center, and yesterday I have told you what is diameter. Diameter is the line joining two opposite points on the circumference, or you can say on the boundary of a circle, and that line should also pass through the center. So there are so many diameters, infinite diameters. So I'll just draw a simple diameter for you. Let's say these two are the opposite points and these two are joined with the straight line, and this line is passing through center also. So this is the diameter. Fine, this is the diameter. Let's call this center as O, and this point as A, this point, and this point as B. Now semicircle is actually half circle, alright, including the diameter. Okay, the diameter divides the circle into two halves. So what I do, I'll rub this portion. So when I rub this portion, I'll get a semicircle. So here you can see two things in a semicircle. You can see the curved part and you can see the diameter. So this is your curved path, or you can say curved part, and this is a straight line. So when I say circumference of semicircle, then I talk about the curved part only, the length of this curved path. That is your circumference. That is your circumference. So if I say circumference of semicircle, then what does this mean? This means the length of the curved part. Okay, length of the curved path only, curved path only. Okay, we are not including this diameter in this. If somebody says the circumference of semicircle, then you are going to tell the length of the curved part. But if somebody says what is the perimeter of semicircle, so in that perimeter you have to include this diameter also, if you want to find out the perimeter. So the perimeter is actually perimeter of semicircle. Semicircle is nothing, it is the sum of circumference of semicircle plus diameter. So you can say circumference of semicircle plus diameter. Okay. So this concept must be clear to you
For circle, circumference and perimeter both are same thing. But for semicircle, these two are totally different. Okay, don't mix them up. Because when somebody wants to ask you some tricky question, or he wants you to think on that, so he will just tell me the perimeter of that particular semicircle. So for perimeter, you have to add the curved path plus diameter. But if he says, tell me the circumference of semicircle, then you are going to just find out this length, the curved length. I hope it is clear. Let's focus on this formula, and we will try to find out the formula for this. Now, as you know that perimeter of semicircle is the circumference of semicircle plus diameter. Now, let's talk about the circumference of semicircle. So, in the previous video, I have told you what is the circumference of the circle. So, circumference of the circle is 2 pi r. So, circumference of semicircle will be what? Half of that only, because semicircle is half circle. So, circumference of semicircle will be half of circumference of the circle. So, here circumference of the circle is what? 2 pi r. But here we have to find out circumference of semicircle. So, it will be what? Circumference of circle divided by 2. That will give you circumference of semicircle. ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आधे सर्कल का क्या होगा? पूरे सर्कल का हाफ ओनली. वही कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है. सो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2. दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस द डायमीटर. नाउ यू कैन राइट डायमीटर एज d, or you can use one relation that I have told you. Diameter is what? 2 times the radius. So you can write, now this 2 and this 2 will cancel. So pi r plus diameter I am writing in terms of radius. So that will be 2r. Okay. Now in some books you will get to know, आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है. किसी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा होगा. किसी बुक में क्या करते हैं कि इसमें जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन वेरिएबल है, उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट बना के एक नया फॉर्मूला आपको दिखा देंगे, मतलब फेस वाइज, ऐसे जैसे फोटो क्लिक करते हैं तो नई फोटो आ जाएगी आपके लिए. लेकिन कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला होता है, उसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है. तो रीअरेंज मतलब अब यहाँ पे मैं क्या, इन दोनों टर्म में से आर को मैं कॉमन ले सकता हूँ. तो ब्रैकेट, अब यहां से मैंने आर कॉमन लिया तो बचा क्या? पाई. साइन वही रहेगा. यहां से मैंने आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2. तो ये है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट? पाई आर प्लस 2r. जिसको ये करना है ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेमोराइज कर सकते हैं. बट समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेमी सर्कल के डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं. तो किसके लिए सेम होते हैं? सिर्फ सर्कल के लिए सेम होते हैं, ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस द डायमीटर. आई होप इट इज क्लियर. ओके, ठीक है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ये आपने नोट कर लिया होगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r. Find the perimeter of the following figure. Okay, so the figure is like this somewhat.
radius is this is radius. The value of r is 10 centimeter. तो अगर कोई क्वेश्चन देता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर में कुछ छोड़ना नहीं है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। पेरीमीटर में कुछ नहीं छोड़ना होता। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला से तो लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज सिंपल फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया फॉर्मूला, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैंने फॉर्मूला एक तरह से आपको समझा दिया। अब उसको अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो क्या है कि वो दिमाग में बैठ जाता है, और फिर आपको फॉर्मूला याद करने का जो हेडेक वो नहीं करना पड़ता उसमें, ठीक है। एक बार समझ लिया, उसको 2-3 बार आपने मेमोराइज कर लिया, काम हो गया आपका, ठीक है। चलिए, जब फॉर्मूला पता है तो वैल्यूज तो कोई भी पुट कर लेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, पाई की वैल्यू। अब यहाँ कहीं क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पाई की वैल्यू उसने कुछ क्वेश्चन में कहा है कि लेना है नहीं लेना है, दिख रहा है ना, कहीं दिया ही नहीं है। तो क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट 22/7। सो लेट्स सी, एंड आर की वैल्यू क्या दी है, 10 सेंटीमीटर। सो 22/7 into 10 centimeter plus 2 into r is what, 10 centimeter. Alright, ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ, अभी कर दे रहा हूँ लेकिन बाद में नहीं करूँगा, आप लोग खुद ट्राई करिए, ठीक है। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है पेरीमीटर की, 360/7 सेंटीमीटर। इसको आप फ्रैक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये यूजुअली यही मेथड होता है, ठीक है। आपको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन। तो कितना होगा ये, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 3/7. So this is the perimeter of semicircle. Semicircle I think आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा एरिया समझ लेते हैं कि एरिया होता क्या है एक्चुअली। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया, बाउंड्री की बात हो रही है। अब उस बाउंड्री के अंदर क्या है मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। अब क्या है कि अब एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें आपको अंदर के रीजन की बात करनी है, बाउंड्री की बात नहीं करनी है। उस बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन आपको दिख रहा है, जो भी प्लेस दिख रही है, जो भी यू कैन से स्पेस दिख रहा है 2D प्लेन में, उसकी बात होती है एरिया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल ओनली। बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक भी है ना सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा एरिया का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि होता क्या है एक्चुअली। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, इसमें बस एक फॉर्मूला है, आपको यूज़ करना है उसको, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करिए, सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। लेकिन एरिया हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। Area is actually the region inside the boundary of any polygon or closed figure, you can say. अब ये बहुत
थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। क्लोज्ड फिगर क्या है? क्लोज्ड फिगर में जैसे कि अगर मैं कोई भी पॉलीगन ले लूं और उसमें किसी को भेज दूं, लेट से आर्म या डॉग है, कोई भी है, अब वो कहीं से भी बाहर नहीं आ सकता इस बाउंड्री से, तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। अगर मैं चलो ऐसा कर दूं तो भाई कोई भी, जैसे आंट हो गया या बी हो गया, अरे कोई भी जानवर ले लीजिए आप, उसको यहाँ पे रखिए तो ढूंढते 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 यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर हो गया। क्लोज में क्या है कि आपको कहीं भी आउटलेट नहीं निकालना है या फिर कहीं भी एग्जिट या एंट्री का कुछ कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है। सो दिस इज योर क्लोज फिगर। अगर मैं कहूँ आपसे इज इट अ क्लोज फिगर, तो ये देखो ना, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। कोई भी अगर आप चींटी रख दें अंदर तो वो ऐसे ऐसे, अगर वो बाउंड्री से नहीं जा पा रही तो वो इधर से चली जाएगी, तो ये ओपन हो गया ना इधर से, क्लोज तो हुआ नहीं। क्लोज में आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब किसी को अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो अब जैसे अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब सर्कल में आपको कहीं भी, जैसे कहीं भी आपको दिख रहा है कि मैं जा सकता हूँ बिना बाउंड्री क्रॉस किए। अगर मैं अंदर हूँ अभी तो बिना बाउंड्री क्रॉस किए मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये आपका क्लोज फिगर हो गया, ठीक है, ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं। नेक्स्ट आता है आपका एरिया। अब एरिया क्या है आपका? एरिया है रीजन। कहाँ का रीजन? अंदर। किसके अंदर? बाउंड्री के अंदर। किसकी बाउंड्री के अंदर? क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री के अंदर। तो ये सर्कल आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर जो भी रीजन है, बाउंड्री के अंदर की बात हो रही, बाहर की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो जितना भी रीजन है अंदर, वो एरिया कहलाएगा। अब जैसे अगर मैं कहूँ ये भी एरिया ले लूं, नहीं ये नहीं ले सकते, ये तो सर्कल के बाहर हो गया ना, बाउंड्री के बाहर हो गया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। वही होता है एरिया। कोई भी फिगर लो, क्लोज फिगर लो, उसका एरिया होना ही होना है। अब क्लोज फिगर में आप एरिया की बात कर रहे हैं। अब जैसे क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर का। सर्कल का एक सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इसके लिए पाई आर अब स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर ना। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं आर टू द पावर 2, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, कुछ भी आप स्क्वायर करें, मतलब स्क्वायर का मतलब कि 2 बार वो रिपीट होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको लिख सकता हूँ पाई इंटू आर इंटू आर। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई इंटू आर। ये है फॉर्मूला। अगर मैं ये वैल्यू यूज करूँ या फॉर्मूला यूज करूँ तो मुझे ये पूरा रीजन आ जाएगा। तो सिंपल से एक लॉजिक है कि एरिया को निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना ही चाहिए। बिना रेडियस के आप एरिया नहीं निकाल सकते। सर्कल की बात हो रही है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? बहुत इजी है, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2, क्योंकि भाई सेमी सर्कल क्या होगा? इसका आधा ही तो होगा, ये आधा हटा दो तो एरिया भी तो हट गया ना आधा। ऐसे में आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है एरिया, अंदर की रीजन, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लिया आपने। अब कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फाइन। और मैं जो है क्लासेस ऐसे ही लेता रहूँगा, और आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड को भी रिफ़र करिए,
उसको भी बेनिफिट लेने दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।